Yes, sir, we did. Or when we are discussing about the circular motion, so we already know that we studied this topic in O level, but not in detail. There was just a single Yes, topic, but now in A2, we have a detailed chapter related to circular motion, right? yes, sir. So starting from the first, yes, first of all, we need to know about the circular motion and the basic terms related to circular motion in this chapter. Yes, sir. Just So circular motion, and if you want to write the basic definition for circular motion, so yes. what is the basic definition? So should I write it, or I mean, should are you telling, Just or to should I? explain, I will write there. So just basic idea about circular motion. So circular motion, I would say, is the movement of an object while rotating around a circular path. Yes. So motion of a object in a circular path, and there is an also important thing related to it, that the speed of a Yes, sir. body will remain constant, right? Yes, So sir. we write the basic definition for circular motion as that motion of a body in a circular path, motion of a body in a circular path with constant speed. Motion of the body. We are saying the term speed is a scalar quantity, and we know that in a scalar quantity only magnitude is going to be included, not direction is included, Yes, right? sir. So Yes, that's sir. why we are using term of speed rather than velocity, because when we use term velocity, so it means that direction and the value or Yes, the direction is magnitude wrong. of the speed will remain constant. So only magnitude will remain constant during the circular motion, because if speed is not constant, then body will not move in a circular path. It will Yes. divert in some. So that is the reason that speed of the body will remain constant throughout the circular motion, right? And Sir. after that, this is the basic definition. We already know about that. But further, if we discuss about their individual properties and the terms which are going to be introduced in circular motion, that is Yes, of sir. angular velocity, angular displacement, and angular acceleration, right? So Yes, first, sir. start with angular velocity. So should I tell you the definitions, or you can? Uh, you can explain, or you want, if you want to tell anything, you can tell me during the class, no issue. Fine. Because we are also writing the definitions and explaining all the terms. Right. So basically, angular velocity, the symbol for angular velocity is of omega. This symbol represents omega, not W. Yes, sir. So omega is the symbol for angular velocity. और एंगुलर वेलोसिटी को एक्सप्लेन करने के लिए जो बेसिक हमारा आइडिया होगा, तो जी सर। एंगुलर से रिलेटेड जो है वो हम एंगल को लिंक करेंगे, क्योंकि अगर हमारे पास एक सर्कुलर शेप हो, जी सर। and in that circular shape we want to calculate the angular velocity. So if body is moving in a circular path, let's suppose body is somewhere at this point, Sir. and we want to calculate the angular velocity. So first of all, we need to draw the basic parameters for circle, और basic parameters circles के लिए हमें पता है कि सबसे पहले यहाँ पर radius होगा. जी सर। Step from the center to the boundary of the circle. Yes sir। And if body is moving in a circular path, it means that the position of that body is from one to another, right? सर आपकी आवाज कट गई, वापस बोलिए। आपकी आवाज कट गई सर, एकदम वापस बोलिए। यहाँ पर जो है वो हमने ये डिस्कस किया कि अगर आपके पास बॉडी एक सर्कुलर पाथ में मूव करती है, ठीक है, तो उसकी कंटिन्यूअसली पोजीशन, सर आपकी आवाज नहीं आ रही, कट रही है। तो
जब बॉडी आपके पास एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कर रही होगी, ठीक है, तो उसकी डायरेक्शन भी चेंज होगी और उसकी पोजीशन भी चेंज होगी, राइट। यस और सर। जब पोजीशन चेंज होगी तो इस बार हम डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की टर्म यूज नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सर्कुलर मोशन है, तो यहाँ पर आपके पास एंगल की टर्म यूज होगी, राइट। सही है सर। और जब पोजीशंस आपके पास चेंज होगी तो पोजीशन चेंज होते वक्त आप एंगल की टर्म तो यूज कर ही रहे हो, साथ ही साथ जी। फिर आपको इनकी डायरेक्शंस को भी इन्वॉल्व करना है, दैट व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ फाइनल वेलोसिटी। सो ये सारी टर्म्स हमारे पास इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सही है और सही अभी है। हम स्पेसिफिक पॉइंट को सॉल्व नहीं कर रहे, अभी हम जर्नल फॉर्मूला देख ले, जर्नल डिस्कशन कर लें, फिर उसके बाद जब हम क्वेश्चन की तरफ आएंगे तो वहां पर हम देखेंगे कि क्वेश्चंस को इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स के साथ कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सही है। और एंगुलर को अगर हमने एक्सप्लेन करना हो तो उससे पहले आप रेडियन को एक्सप्लेन करो, ठीक है, जो आपने यहाँ पे ठीक है। कवर किया, जो रेडियंस को एक्सप्लेन करेगा, तो रेडियंस को आप किस तरह से एक्सप्लेन करोगे। सर मैं आपको रेडियन, सर वो तो एक डिग्री, क्या कहते हैं उसे, यूनिट है ना रेडियन हाँ, तो, लेकिन बिल्कुल एक यूनिट एंगल तो का। उसका सर करेंगे तो सिंपल नहीं सा, है। हाँ सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है, क्योंकि हम बॉडी को जब एक पाथ में मूव करवा रहे हैं सर्कुलर, तो जितना भी एंगल वहां पर जी सर। क्रिएट होगा बॉडी के थ्रू, तो वो एंगल हमारे पास रेडियन होगा, ठीक है। जिस तरह क्वेश्चंस आपके पास होते हैं उसमें डिफाइन रेडियन, डिफाइन एंगुलर वेलोसिटी आता है अगर, तो हमें वहां पे उसको डिफाइन भी करना होता है, ठीक है। और डिफाइन करने के लिए आप सिंपल ये लिख सकते हो कि एंगल सबटेंडेड बाय अ बॉडी ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन इज नोन एज रेडियन। सही सही। तो एंगल सबटेंडेड बाय अ बॉडी ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन इज नोन एज द रेडियन। तो ये हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इसी चीज को आपने एक्सप्लेन कर देना फॉर रेडियन। तो सही अब है। रेडियन का कॉन्सेप्ट हो गया। और प्रीवियस अगर हम लीनियर वेलोसिटी के साथ इसे कंपेयर करते हैं, तो लीनियर वेलोसिटी की डेफिनेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, ये हम स्पीड और वेलोसिटी की डेफिनेशन लिखते थे, जी ठीक है। सर। अब बस उसे थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेना है, और मॉडिफाई करना है हमने सर्कुलर मोशन के अकॉर्डिंग। सो आप सिंपल क्या लिख सकते हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। सही। तो एंगुलर वेलोसिटी के लिए आप डिफाइन कर सकते हो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज एंगुलर वेलोसिटी। और जब भी रेट होता है, आपके पास किस कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करता है। सर वापस से बोलिए। जब आप वर्ड रेट यूज कर रहे हो, तो वहां पे जी वर्ड सर। रेट को आप किस चीज के लिए यूज कर रहे हो, रेट किस क्वांटिटी को डिफाइन करेगा। सर रेट मतलब सर समझ नहीं हम। अच्छा देखो, अभी हमने टाइम का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया ना, कि जब जी आप सर। टाइम को डिवाइड करते हो, वेलोसिटी को डिवाइड करते हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो एक्सेलरेशन होगा, डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करेंगे तो वेलोसिटी होगा, ठीक है। जी सर। इसी तरह से जब आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को डिवाइड करो टाइम से, तो डेफिनेशन में हमने टाइम का वर्ड तो यूज नहीं किया, हमने यहाँ जी पे सर। टर्म यूज किया रेट की, ठीक है। तो रेट का मतलब ये होगा कि हम क्वांटिटी को डिवाइड करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सही है। तो रेट का वर्ड अगर लिखा है तो आपको टाइम को इंडिविजुअल मेंशन करने की जरूरत नहीं है, ये सही कॉन्सेप्ट है। हमें पता है कि रेट का वर्ड हम साइंसेज में यूज करते हैं टू डिवाइड क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा जो है वो आपके पास इक्वल होगा थीटा ओवर टाइम, ठीक है। तो ये आपके पास बेसिक फॉर्मूला आ गया फॉर एंगुलर वेलोसिटी, थीटा ओवर टाइम। तो जो भी थीटा हमारे पास यहाँ पे क्रिएट होगा बॉडी के सर्कुलर मोशन की वजह से, और उसको टाइम से डिवाइड करके एंगुलर वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। सर ये एंगुलर वेलोसिटी का हाँ सही है, एक मिनट में लिख लूँ सर। सर लिखिए सही। ठीक है। और अच्छा, अगर हम जर्नली देखें, क्योंकि अभी इंडिविजुअल एंगल्स तो हम सॉल्व करेंगे, वो तो डिपेंड करता है हमारे क्वेश्चन पे, लेकिन अगर हम जर्नली कंप्लीट सर्कल की बात करें, लेट्स सपोज अगर ये पोजीशन 1 है,
बॉडी इस पोजीशन 1 से स्टार्ट होने के बाद कंप्लीट एक सर्कल करने के बाद आपके पास वापस इस पॉइंट पर आपको मिलती है, जी तो सर। एक कंप्लीट सर्कल बन रहा है। ठीक है, और उस कंप्लीट सर्कल के लिए आपके पास टोटल एंगल कितना होगा, टोटल रेडियंस कितने होंगे? सर एंगल 360 होगा एंगल 360 हो और जाएगा। 2 पाई होगा। ठीक है, तो 2 पाई हो जाएगा बिल्कुल। तो अगर हम कंप्लीट एक सर्कल की बात करते हैं, तो एक सर्कल का मीनिंग ये है हमारे पास कि 360 एंगल जो है वो थीटा इक्वल्स टू 2 पाई रेडियंस के इक्वल होगा। जी सर। तो ये हमारे पास एक सर्कल की इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि अगर एक कंप्लीट सर्कल ट्रैक बॉडी कंप्लीट कर रही है तो वो 2 पाई रेडियंस के इक्वल होगा। ठीक है, क्योंकि पाई रेडियन हमें पता है 180 होता है, 2 से मल्टीप्लाई करने पे वो 360 हो जाएगा। जी सर। और उसका जो टाइम पीरियड होगा, उस टाइम को कैसे एक्सप्लेन करोगे? अच्छा, एक होती है सिर्फ टाइम की क्वांटिटी, सिर्फ हम टाइम लिख रहे होते हैं, सिंपल टाइम। जी और सर। जब हम टर्म यूज करते हैं टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड में क्या डिफरेंस होता है, टाइम और टाइम पीरियड? और टाइम पीरियड जो पूरा मतलब एक, जैसे कंप्लीट कि होगा। इसने 10 सेकंड में पूरा 1 किलोमीटर ट्रैवल किया, मतलब इस ऐसे में एग्जांपल दे रहा हूँ, तो वो Yes. 10 सेकंड टाइम पीरियड होगा उसका कि इसने कितने टाइम में कितना वो डिस्टेंस कवर की। हाँ, जब हम स्पेसिफिक बात कर रहे होते हैं तो स्पेसिफिक टाइम को फिर हम टाइम पीरियड में काउंट करते हैं। टाइम जो है वो नॉर्मल जो भी रैंडम गिवन है, ठीक है। और टाइम पीरियड जो है वो आपके पास स्पेसिफिक किसी स्लॉट को एक्सप्लेन कर रहा होगा। ठीक है, सही। तो टाइम पीरियड को आप डिफाइन यहाँ पर करोगे टाइम टू कंप्लीट वन सर्कल। ठीक है, सही। वन सर्कल हो जाएगा हमारे पास। टाइम टू कंप्लीट वन सर्कल इज नोन एज टाइम पीरियड, और टाइम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन और वन कंप्लीट राउंड ट्रिप। ठीक है, और नॉर्मल टाइम को हम स्मॉल टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो टाइम पीरियड की वैल्यू को हम कैपिटल टी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, स्पेसिफिक अगर हम लिख रहे हो। ठीक है, तो ये वैल्यू जो होगी, ये डेफिनेशन जो होगी वो हमारे पास टाइम पीरियड को एक्सप्लेन कर रही है। तो ये क्वांटिटी आपके पास टाइम पीरियड की होगी। ठीक है, तो सही यहाँ है। तक हमारे पास बेसिक हो गया। और अब जब आप एक सर्कल की बात करी और आपके पास एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला भी आ चुका है, तो वन सर्कल के लिए आप उस एंगुलर वेलोसिटी के फॉर्मूला को कैसे रिप्लेस कर सकते हो? ओमेगा इज इक्वल्स टू, थीटा को रिप्लेस करेंगे 2 पाई से, जी सर। और टाइम को रिप्लेस कर देंगे टाइम पीरियड कैपिटल टी से। ठीक है, तो ये आपके पास जो एंगुलर स्पीड होगी, ये होगी फॉर वन सर्कल। सही है। आपके पास एंगुलर स्पीड होगी फॉर वन सर्कल, और वन सर्कल के लिए आप इजीली इसको यूज कर सकते हो। फिर हमारे पास जो भी वैल्यूज होंगी न्यूमेरिकल वैल्यूज, तो हम उसके अकॉर्डिंगली फिर इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और एक कॉन्सेप्ट आपको याद होगा कि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड जो हमने वेव्स में ओ लेवल्स में पढ़ा होगा, तो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का रिलेशन कैसा होता है, इनवर्सली या अगर आप फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड की बात कर रहे हो, तो फ्रीक्वेंसी जी और सर। टाइम पीरियड का रिलेशन डायरेक्टली 1/2 होता है ना सर, पहले ही अप्लाई कर 1 दिया ओवर उससे का, टाइम। इसका मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल यूज करेंगे। जी ठीक, सर। तो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड। और अगर हम इस कॉन्सेप्ट को इस फॉर्मूला पे अप्लाई करते हैं, तो आपके पास फॉर्मूला में क्या चेंज आ जाएगा? सर तो एफ, एक मिनट सर, डब्ल्यू इज इक्वल्स टू, ओमेगा इज नहीं सर, पाई ओवर टी टी, उधर आ जाएगा तो एफ हो जाएगा सर। एफ हो जाएगा, क्योंकि 1/t तो ऑलरेडी गिवन है हमारे हाँ पास। सही है, समझ आ गया। तो हम ओमेगा को यूज कर सकते हैं न्यू फॉर्मूला के फॉर्म में, 2 पाई एफ। सही है सर। तो यहाँ पर हमने टोटल तीन जो वैल्यूज हैं वो ड्राइव कर ली फॉर एंगुलर वेलोसिटी, 1, 2 और 3। ठीक है, ये तीनों हमारे पास वेरिएशंस आ गई एंगुलर वेलोसिटी के लिए, और इसमें ऐसा नहीं कि तीनों अलग अलग आप सेपरेट याद रखो।
आपको एक फॉर्मूला याद है, बाकी हमने ड्राइव किया है, ठीक है। वो कोई न्यू आपके पास फॉर्मेशन नहीं है, कोई नई टर्म नहीं है, सेम टर्म को हम ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है। जी सर। तो यहाँ तक हमारे पास एक एंगुलर स्पीड की बात हो गई, एक एंगुलर वेलोसिटी की बात हो गई सर्कुलर मोशन के लिए। उसके बाद अगर हम इसको कंटिन्यू करते हैं और हम ये देखना चाहते हैं कि बॉडी में और कौन सी क्वांटिटीज हो सकती हैं, ठीक है। हमने एंगल, टाइम, एंगुलर वेलोसिटी ये कंप्लीट किया। अब लेट्स सपोज अगर कोई आपसे ये पूछे कि सर्कुलर मोशन में बॉडी की डायरेक्शन क्या होगी। अगर लेट्स सपोज आप जी इस सर। स्पेसिफिक पॉइंट की बात करते हो, ठीक है, जो कि पहले से ऑलरेडी मार्क है, और आपने यहाँ पर इस बॉडी की डायरेक्शन को आइडेंटिफाई करना हो कि लेट्स सपोज यहाँ से हमारे पास स्ट्रिंग ब्रेक हो जाए, यहाँ पे सेंटर से हमने एक स्ट्रिंग स्टोन के साथ कनेक्ट किया और वो जी स्ट्रिंग सर। आपके पास ब्रेक हो जाता है, तो ये तो सर ग्रीन सीधी स्टोन, चली जाएगी, हम्म, सीधी ऊपर चली जाएगी। ठीक है। आपने क्या करना है कि आपने पहले क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आइडेंटिफाई करना है। हमें पता है यहाँ पर रोटेशन अभी क्या है, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है। तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन का मतलब ये है कि डायरेक्शन भी इसी के अकॉर्डिंगली मूव करेगी यहाँ पर, और वो जो जी डायरेक्शन सर। होगी वो बिल्कुल स्ट्रेट होगी जिस पॉइंट से भी वो उस पाथ को स्किप करेगा, ठीक है। और अगर ये लाइन को मैं एक्सटेंड करता हूँ बैक साइड पर भी, ठीक है, तो जी सर। बेसिकली ये लाइन किस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रही है। सर इसकी क्या कहते हैं, डायरेक्शन को। डायरेक्शन हाँ, को, टेंजेंट, इसका तो टेंजेंट है ये सर। आपके पास टेंजेंट को रिप्रेजेंट करता है मैथमेटिकली। अगर हम इसको देखें तो हम इसके जी लिए जी सर, टेंजेंट समझ की आ जरूरत करेंगे। गया। तो एक इम्पॉर्टेंट बात ये याद रखनी है कि हमने, कि अगर हमारे पास सर्कुलर मोशन की हम बात करें, तो इस पॉइंट को भी यहाँ लिख लेते हैं कि जी आपके पास बॉडी की डायरेक्शन जो होगी, so direction of a body is always tangent to a circle. सही। डायरेक्शन ऑफ बॉडी बस। Always tangent to the circle. ठीक है। तो ये हमेशा टेंजेंट टू द सर्कल होगा, ये हमें याद होना चाहिए। और वैसे भी बेसिक है, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है जी कि सर, जी सर। अलग से याद रखा जाए। क्योंकि देखो, जब भी हम लाइन बनाते हैं तो लाइन बनाने के लिए हमें मिनिमम दो पॉइंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। हम दो पॉइंट्स मार्क करते हैं और उनको कंबाइन करते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन बनती है, राइट। यस सर। और स्ट्रेट लाइन बनने का मतलब ये कि अगर हम उस लाइन को फिर कर्व करते हैं, या उस लाइन को अगर मोल्ड किया जाए, जिस तरह आपके पास एक वायर है, आप वायर को राउंड करके एक सर्कल भी बना सकते हो, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि सर्कल भी जो है वो एक स्ट्रेट लाइन के कंपोनेंट से मिलकर बन रहा है। अगर आप इस सर्कल को ब्रेक करते हो बहुत स्मॉल पार्ट्स में, ठीक है, आप इसका बहुत स्मॉल पार्ट यहाँ पर कंसिडर करते हो, तो आप देखो ये एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में ही है, ठीक है। आप इस तरह से इसके कंपोनेंट्स बना दो तो आपको हर कंपोनेंट एक स्ट्रेट लाइन दिखेगा। तो इस वजह से जो है वो सर क्या हर, कह यहाँ पर ये था कि अगर एक स्ट्रेट लाइन हो आपके पास, जैसे एक नॉर्मल वायर है आपके पास, 3 सेंटीमीटर की एक नॉर्मल वायर है, और आप उसको राउंड जी। करके एक सर्कल शेप बना सकते हो, ठीक है। तो इसका जी मतलब सर। सर्कल आपके पास कोई एक स्पेसिफिक, कोई आपके पास यूनिक क्वांटिटी नहीं आई, वो हमने एक स्ट्रेट लाइन से भी बना लिया, ठीक है, सिर्फ उसकी जी सर। डायरेक्शन को चेंज करके। तो इसी तरह से अगर आप इस सर्कल को स्मॉल कंपोनेंट्स में ब्रेक, ठीक है, जैसे यहाँ पर स्मॉल कंपोनेंट्स में हमने इसे ब्रेक किया, तो आप देखो हर कंपोनेंट आपको एक स्ट्रेट लाइन दिखा रहा है। हर स्मॉल कंपोनेंट जो है वो जी। एक जी स्ट्रेट सर। लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, स्ट्रेट लाइन। ठीक है। तो इस वजह से बॉडी की डायरेक्शन भी जो है वो एक स्ट्रेट लाइन में होती है। सही है सर। तो यहाँ पर डायरेक्शन हमेशा स्ट्रेट लाइन होगी, क्योंकि हमारे पास हर स्मॉल कंपोनेंट एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। तो जब एक स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट आ गया यहाँ पर, तो हम वापस अपने डायनेमिक्स पे चले गए कि जो बॉडी की स्पीड होती है, बॉडी की जो वेलोसिटी होती है, वो भी हमने एक स्ट्रेट डायरेक्शन के लिए पढ़ा था, ठीक है। वहां पे सर्कुलर मोशन नहीं था, वहां पे एक स्ट्रेट डायरेक्शन थी। तो अगर बॉडी एक स्ट्रेट डायरेक्शन में मूव करती है, जी। वहां पर जो स्पीड और वेलोसिटी होगी वो भी equal होगी, ठीक है।
तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर एक जी कॉन्सेप्ट सर। आपके पास आएगा टेंजेंशियल वेलोसिटी का। मतलब एक एंगुलर तो मतलब है, किसका? एक एंगुलर वेलोसिटी तो यहाँ पर हमारे पास है। जी सर। और क्योंकि जी एक सर। टेंजेंट लाइन जो हमने ड्रॉ की है, तो वो टेंजेंट लाइन रिप्रेजेंट कर रही जी है सर। एक लीनियर वेलोसिटी को। और आप सिंपल जी वर्ड सर। में जी उसको सर। लिख सकते हो टेंजेंशियल वेलोसिटी। सही है सर। टेंजेंशियल वेलोसिटी हमारे पास वो नॉर्मल वेलोसिटी है जो हमने अपने डायनामिक्स में पढ़ा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे टेंजेंट के साथ हम उसे लिख रहे हैं तो टेंजेंशियल वेलोसिटी हम उसे लिख सकते हैं, ठीक है। वरना आप लीनियर वेलोसिटी भी लिखो, कोई इशू नहीं है। सही है सर। तो इसका मतलब ये कि एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी का भी कोई लिंक होगा, ठीक है। जी सर। और उसके लिंक को लिखने के लिए हम क्या करेंगे, हम लीनियर वेलोसिटी का फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। और लीनियर वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला क्या होता है आपके पास? सर डिस्टेंस ओवर टाइम। डिस्टेंस ओवर टाइम। तो टेंजेंशियल वेलोसिटी को और एंगुलर वेलोसिटी को कंबाइन करने के लिए अगर हम उसका फॉर्मूला लिखते हैं तो सिंपल v इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर टाइम होगा, ठीक है। और डिस्टेंस को हम यहाँ पर रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि डिस्टेंस अभी हम कंप्लीट सर्कल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो कंप्लीट सर्कल जी के सर। लिए अभी आया था कि 2 पाई रेडियंस के इक्वल जी सर। डिस्टेंस को 2 पाई रेडियंस के इक्वल लिख सकते हैं। और 2 पाई रेडियंस के इक्वल लिखने के बाद आप 2 रेडियन डिवाइडेड बाय टाइम टाइम। पीरियड और टाइम टू कंप्लीट वन सर्कल, ठीक है। जी सर। ये हमारे पास जो है वो लीनियर या टेंजेंशियल वेलोसिटी का concept है। और इसके बाद अगर हम इसको भी और थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहें तो इसको भी मॉडिफाई हम कर सकते हैं कि यहाँ से जो 2 पाई ओवर टी है, 2 पाई ओवर टी को किससे रिप्लेस कर सकते हैं? एंगुलर सर टू वेलोसिटी, पाई ओवर टू एंगुलर वेलोसिटी से जी। ठीक है। वो एंगुलर वेलोसिटी रिप्लेस होने के बाद जो फाइनल फॉर्मूला होगा v इज वी इक्वल्स टू आर ओमेगा। या ओमेगा, आर ओमेगा। ठीक है। आर ओमेगा होगा ना सर? हाँ, वो दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो सीक्वेंस मैटर नहीं करता, आप सही पहले है। किसी को भी लिख सकते हो। तो ये आपके पास जो है वो कॉम्बिनेशन आ गया लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी में। किन दोनों का आपस में जो लिंक होगा वो भी इक्वल्स टू आर ओमेगा के फॉर्मूला से होगा, ठीक है। सही है सर। अच्छा, ये अब दोनों के लिंक की बात हो गई कि दोनों का कॉम्बिनेशन आपके पास किस तरह से होता है। v इक्वल्स टू आर ओमेगा का कॉन्सेप्ट आ गया। अब जब जी सर। टेंजेंशियल वेलोसिटी को हमने इन्वॉल्व कर लिया, तो टेंजेंशियल वेलोसिटी को इन्वॉल्व करने के बाद अब अगर उसे सॉल्व करके हम एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना चाहें, ठीक है। जी सर। और सेम हमारे पास कॉन्सेप्ट हो वो सर्कुलर बॉडी का, सर्कुलर पाथ का। और अब हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं एक्सेलरेशन। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि एक्सेलरेशन यहाँ पर प्रोड्यूस क्यों हो रही है, क्योंकि ऊपर डेफिनेशन में हमने कांस्टेंट स्पीड का वर्ड लिखा। तो एक्सेलरेशन यहाँ क्यों प्रोड्यूस हो रही है? कांस्टेंट स्पीड में तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होती। जी सर। तो फिर एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट क्यों आएगा यहाँ पर? इस चीज को कैसे जस्टिफाई करेंगे? सर एक मिनट। जब उसमें सर क्योंकि एंगल नहीं, एक मिनट। जब सर कांस्टेंट वेलोसिटी है तो फिर डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन क्यों चेंज होगा? कांस्टेंट स्पीड है, वेलोसिटी नहीं है, जी। कांस्टेंट स्पीड है। कांस्टेंट स्पीड है जी। तो ये हमने तो ऊपर सर डेफिनेशन डायरेक्शन लिखा, डायरेक्शन चेंज हो रही है इसलिए। डायरेक्शन चेंज हो रही है, बिल्कुल। तो हम हमने अभी तक जितना भी डिस्कस किया तो मैग्नीट्यूड तो सेम थी लेकिन डायरेक्शन का चेंज हो रहा था। तो डायरेक्शन के जी चेंज की वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो सकती है। तो एक्सेलरेशन इसलिए प्रोड्यूस होगा क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन के लिए सिंपल हम लिख सकते हैं कि पहले तो इसका रीजन दे रहे हैं, फिर इसकी डेफिनेशन। तो आपको पता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी होगा, तो पहले जी इसका सर। डेफिनेशन लिख देते हैं। तो डेफिनेशन होगी रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, rate of change of angular velocity is known as angular acceleration। तो हम एंगुलर एक्सेलरेशन कर लेते हैं। सही है सर। तो ये एंगुलर एक्सेलरेशन हो जाएगा और रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी एक्सप्लेन करेगा एंगुलर एक्सेलरेशन को।
और एंगुलर एक्सेलरेशन के बाद हम इसका रीजन लिख सकते हैं कि वाई एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड और वाई एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूसिंग इन सर्कुलर मोशन। तो इसका रीजन ये होगा, कभी कभार ऐसा होता है कि डेफिनेशन नहीं होती एग्जाम में, तो वो रीजन पूछ लेते हैं कि वाई एक्सेलरेशन इज गोइंग टू बी प्रोड्यूस इन सर्कुलर मोशन इफ देयर इज अ कांस्टेंट स्पीड। तो उसका रीजन आपको बहुत बेसिक सा है, और वो रीजन ये है कि speed of a body is constant of a body is constant, but the direction of a body is continuously changing. But the direction of a body is changing from to point every point on a circle. So डायरेक्शन चेंज हो रही है हमारे पास, लेकिन जो मैग्नीट्यूड और स्पीड है वो कांस्टेंट है। तो इस वजह जी से सर। आपके पास एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। और एक्सेलरेशन का बेसिक फॉर्मूला तो हमें पता है, v ओवर टी। ठीक है, जी तो सर। बेसिक फॉर्मूला तो हम लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी डिवाइडेड बाय जो टाइम में चेंज होगा, वो हमारे पास एक्सेलरेशन का बेसिक फॉर्मूला है। लेकिन जी अब सर। हम यहाँ पर ये देखना चाह रहे हैं कि एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए फॉर्मूला क्या होगा, और एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिखने के लिए हमें इसमें एंगुलर वेलोसिटी को इन्वॉल्व करना होगा। ठीक है, और एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू क्या होगी? सर पार्ट में सर टू टू बाय एफ। ठीक है, 2 पाई एफ लिख सकते हैं हम, और नीचे टाइम की वैल्यू होगी। ठीक है, जी सर। अच्छा अब लेकिन क्योंकि एक्सेलरेशन जो है ना, दोनों क्वांटिटीज के साथ लिंक है, वो स्पीड के साथ भी लिंक है, और वो डायरेक्शन यानी टेंजेंशियल वेलोसिटी के साथ भी लिंक है। तो उसका जी लिंक तो सर। दोनों के साथ है, क्योंकि दोनों की चेंज या दोनों के कॉम्बिनेशन की वजह से जो भी आपके पास फाइनल इफेक्ट आ रहे हैं, तो जी उस सर। इफेक्ट की वजह से आपके पास एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है। तो उसके लिए हमने लास्ट टाइम भी एक डिस्कस किया था कि अगर हम इन दोनों पॉइंट्स की पोजीशन को मार्क करते हैं सर्कल पे, लेट सपोज अगर उस सर्कुलर पाथ में आपके पास, हमारे पास इनिशियल पोजीशन सर्कल में फर्स्ट पॉइंट पर बॉडी यहाँ पर है। ठीक है, और जी थोड़ा सा सर। डिस्टेंस कवर करने के बाद बॉडी लेट सपोज एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही है, तो पोजीशन आपके पास यहाँ पर होगी सेकंड। ठीक है, और आप यहाँ से इसका रेडियस कैलकुलेट कर सकते हो। और अगर हम इनकी वेलोसिटीज को मार्क करते हैं, तो ब्लैक मार्क पर जो है वो इनिशियल वेलोसिटी होगी, और ग्रीन मार्क पर जो है वो फाइनल वेलोसिटी। या आप इसके लिए लिख सकते हो कि ये फर्स्ट वेलोसिटी होगी हमारे एक्सपेरिमेंट की, और ये सेकंड। क्योंकि अभी हम कंप्लीट सर्कल को सॉल्व नहीं कर रहे, हमने सिर्फ जी सर। एक्सेलरेशन को देखना है। तो ये सही। हमारे पास जो है वो वेलोसिटी का चेंज आ गया। और अगर आपने रिजल्टेंट फाइंड आउट करना हो, तो रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंगली इन्हें ऐड कर लेते हैं। ठीक है, और जी हेड टू सर। टेल रूल के अकॉर्डिंगली ऐड करने का मतलब ये है कि इसका रिजल्टेंट जो कंप्लीट होगा वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। तो नीचे ऊपर से नीचे ठीक है, छोटा तो होगा। आपके पास ये एक ट्राइंगल की फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? नहीं सर। तो ये आपके पास एक वेक्टर डायग्राम की फॉर्म में आ गया। और अब यहाँ वेक्टर फॉर्म की डायग्राम जो आ गई, और यहाँ से अगर हम एक स्ट्रेट डायगोनल ड्रॉ करते हैं जो कि इस पॉइंट से पास होगा, तो वो उसको सेंटर से इक्वल पार्ट्स में ब्रेक कर रहा है। ठीक है, दोनों इक्वल पार्ट्स में आपके पास ब्रेक हो रहे हैं, और इसको ब्रेक होने का मतलब ये कि ये जो फाइनल चेंज है वेलोसिटी का, ठीक है, उसको इसने दो इक्वल पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, यानी पहला कंपोनेंट भी इसको हाफ रिप्रेजेंट कर रहा है। सर हाफ क्यों कर दिया लेकिन ताकि। हाँ, अब क्योंकि हमने यहाँ से ये देखना है ना कि अगर इसकी फ्रंट डायरेक्शन हम फॉलो करते हैं,
तो इसके अकॉर्डिंगली ये हाफ सही पार्ट है। डिवाइड हो गया। ठीक है, यानी ये कंपोनेंट भी आपके पास हाफ हो गया और ये कंपोनेंट भी आपके पास रिमेनिंग हाफ होगा। तो इसके अकॉर्डिंगली फिर थीटा भी आपके पास हाफ हो जाना चाहिए। ठीक है, सही। मतलब ये थीटा, थीटा बाई 2, और बाकी रिमेनिंग भी थीटा बाई 2। तो इस ये सारी चीजें ड्रॉ करने का रीजन ये है कि जब हम इसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हो तो हमें आइडिया हो कि हमने डायग्राम को स्प्लिट कैसे करना है, वेक्टर डायग्राम कैसे बनानी है, तो कैलकुलेशन कैसे करनी है। ठीक है, तो हम इस तरह से इजीली ड्रॉ करके और सारे वेक्टर को मार्क कर सकते हैं। अच्छा, अब क्योंकि अगर सेम हम एग्जाम्पल पर जाएं जो हमने सर्कल को ड्रॉ किया था, ठीक है, तो अभी हमारे पास जब कंप्लीट सर्कल नहीं है, क्योंकि अब जब वेलोसिटी की चेंज की बात हो रही है, जी वेलोसिटी जब सर। पोजीशन चेंज कर रही है, तो अभी तो हम कंप्लीट सर्कल को सॉल्व नहीं कर रहे चेंज में। तो जितना भी यहाँ पर मार्क आपको मिलेगा, ठीक है, आपने इस पॉइंट से यहाँ तक जितना भी चेंज प्रोड्यूस किया, तो इस डिस्टेंस को आप किससे रिप्रेजेंट करते हो? अगर आप एक सर्कल की ही बात कर रहे हो तो सर आर्क, आर्क लेंथ। रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अब ये जी। आर्क का कॉन्सेप्ट आप यहाँ पर यूज करोगे, और आर्क कैलकुलेट करने के लिए भी आपने मैथ्स में एक फॉर्मूला पहले से पढ़ा होगा। अगर हम आर्क की बात जी कर रहे हैं सर। यहाँ पर, और आर्क अगर को आर्क को अगर हम एक कंप्लीट सर्कल पे बना दें, तो आर्क जी हमारा एक कंप्लीट सर्कल हो, तो फिर हम उस टर्म को क्या कहते हैं? सर। एक मिनट। अगर आर्क एक कंप्लीट सर्कल ड्रॉ कर रहा हो, तो फिर वो हमारे पास सर्कमफेरेंस बन जाएगा। सेक्टर। हम्म। सर एक कंप्लीट सेक्टर हो तो उसमें आर बन जाएगी ना फिर। हाँ, तो अगर हम एक कंप्लीट सर्कल पे बना रहे हैं उसे, ठीक है, जी। तो हम उसे सर्कमफेरेंस में, और सर्कम सर्कल डिफाइन करना है, तो सर्कमफेरेंस एक सर्कल का कितना होगा? फिर क्या कहते हैं उसको? सेम। सर आपकी आवाज कट रही है। अभी क्लियर है या अभी भी सेम इशू है? जी सर सही है। तो बीच में से कट जाती है वो। तो हम यहाँ पर बात कर रहे थे सर्कमफेरेंस की, और सर्कमफेरेंस आपके पास एक सर्कल का सेम 2 पाई r के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, जी सर। इतना भी रेडियन कवर कर रहे हैं। और इसके लिए फिर आप एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कि अगर आपने ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना हो, तो आप s इक्वल्स टू आर थीटा से कैलकुलेट कर सकते हो। जी सर। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है s इक्वल्स टू आर थीटा, कि हम जी जी। जो भी हाँ। सर्कमफेरेंस पे अगर वैल्यू आ रही है डिफरेंट एंगल की, अगर कंप्लीट सर्कल नहीं बनता, तो हम s इक्वल्स टू आर थीटा से कैलकुलेट कर सकते हैं। क्योंकि थीटा हमें ये बता देगा कि चेंज कितना आया एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन, और रेडियस हमें ये बता देगा कि हम कितनी लेंथ के सर्कल को ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, सही है सर। और इसके अकॉर्डिंगली अगर हम कंप्लीट सर्कल की स्पीड को मैच करते हैं, तो स्पीड इन होल सर्कल आप लिख सकते हो जी सर। in one or whole circle can be written as v is equal to distance over time, सेम फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, सर और आपकी ये आवाज क्या कट रही है होगा? फिर। अच्छा, यहाँ पर मैं कह रहा था स्पीड जो होगी वो आपके पास रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो हम लिखते हैं डी ओवर, और वो इक्वल होगा सही आर है। डेल्टा थीटा ओवर। ठीक है, सही है सर। और अगर अब हमने टाइम कैलकुलेट करना हो, क्योंकि अभी तक हमने टाइम के लिए कुछ वैल्यू नहीं लिखी, अगर हमें जी टाइम सर। कैलकुलेट करना हो तो टाइम हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? तो अगर इसी फॉर्मूला से हम टाइम को सब्जेक्ट बनाते हैं, तो टाइम को सब्जेक्ट बनाने के बाद हमारे पास जो फाइनल फॉर्मूला होगा वो इक्वल होगा टी इज इक्वल्स टू आर थीटा ओवर वी। आर डेल्टा थीटा ओवर वी। जी ठीक सर। है, तो ये हमारे पास टाइम की वैल्यू होगी जिसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं टू फाइंड आउट द टाइम इन सर्कुलर मोशन। तो अब हम इस वैल्यू को भी यूज कर सकते हैं।
किसी भी क्वांटिटी को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। और अगर हमारे पास सेम वही राइट एंगल ट्राइंगल हो, अब अगर हम इस सेम डायग्राम को अगर फॉलो करते हैं, ये जो बनाई थी, ठीक है, अगर हम इसमें दोनों इंडिविजुअल ट्राइंगल्स को देखें जो ब्रेक हो चुके हैं ऑटोमेटिकली, तो हर ट्राइंगल अब एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। जी सर। ये फर्स्ट भी राइट एंगल रिप्रेजेंट कर रहा है और राइट एंगल ट्राइंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्योंकि सर्कुलर मोशन में तो डायरेक्शन डिफरेंट होती है, तो इसलिए हमने इसको स्ट्रेट डायग्राम में बनाया ताकि इजी हो जाए, ठीक है। सही। और अगर हम इसकी अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को सॉल्व करते हैं, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को सॉल्व करने के बाद जो आपके पास एक्सेलरेशन का फाइनल फॉर्मूला आता है, ठीक है, वो फाइनल फॉर्मूला, क्योंकि हमने पूरा सॉल्यूशन तो वहाँ एग्जाम में नहीं करना होता डेरिवेशन डिटेल, तो हम सिंपल ये लिख सकते हैं कि जो आपके पास एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होगा वो इक्वल होगा ए इक्वल्स टू वी स्क्वायर ओवर, सर ठीक है वी स्क्वायर ओवर आर के। जी। तो अच्छा, असल में अब हमने ये प्रूव करना है कि ये जो फाइनल फॉर्मूला ए इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर है, ठीक है, ये हमारे पास आएगा कैसे। एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला देखा है ओमेगा का, ठीक है, और मेरी सर एक मिनट रुकेंगे, जी, 1 मिनट रुके सर, मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ। ओके। तो हमने यहाँ पर ये सॉल्व करना था कि अगर आपके पास जी सर। एंगुलर एक्सेलरेशन का जो ये फॉर्मूला है वी स्क्वायर ओवर आर, तो ये कैसे जी ड्राइव सर। होगा, ठीक है। तो इसको जी ड्राइव सर। करने के लिए हम सेम ट्राइंगल की डायग्राम को follow करें और इसका जो हम सिंपल सेपरेट कर लेते हैं, तो और इजी हो जाएगा, थोड़ी सी क्लियर पिक्चर बनेगी। और उसको हम इंडिविजुअल ड्रॉ करते हैं तो डायग्राम इस तरह से होगी कि अगर हम उस राइट एंगल ट्राइंगल को बिल्कुल स्ट्रेट करते हैं, ठीक है। आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है सेम, ठीक है, उसी शेप में से हमने एक पीस को कट किया और उसी पीस में से अगर हम देखते हैं हाफ वैल्यू को लिखा था कि ये जो एंगल होगा ये एंगल थीटा 2 था, हाफ था, और जो वेलोसिटी का कंपोनेंट था वो हमारा हाफ हो गया था, ठीक है। जी सर। ये सेम हाफ थीटा और हाफ वेलोसिटी वाली वैल्यूज जी सर सही है। के बाद अब हम इसको अगर अप्लाई करते हैं पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग, तो हमें पता है cos थीटा sin थीटा tan जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं हम इन्हें यूज करते हैं टू सॉल्व द एंगल। तो यहाँ पर हम कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, साइन और कॉस, जी सर। ठीक है। तो अगर हम साइन थीटा यूज करते हैं तो साइन थीटा इक्वल किसके होगा, सर ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज। ओके। सो बेसिकली साइन थीटा एक्सप्लेन ये करता है कि अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल से आप साइन थीटा कैलकुलेट कर रहे हो तो वो रिप्रेजेंट होगा परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के। अब इसमें परपेंडिकुलर कहाँ पर होगा, जो 90 डिग्री मार्क होता है, ठीक है, यहाँ पे 90 डिग्री मार्क की है, तो 90 डिग्री के बिल्कुल फ्रंट साइड पर जो आपको उसके ऑपोजिट साइड पर लाइन दिख रही है स्ट्रेट, ठीक है, ये रिप्रेजेंट करेगा हाइपोटेन्यूज को। जी सर। और परपेंडिकुलर जो है वो ये लाइन हो जाएगी, ठीक है, जहां पर v/2 लिखा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि साइन थीटा की वैल्यू को अगर हम कैलकुलेट करते हैं यहाँ पर, तो साइन थीटा की वैल्यू होगी, और थीटा भी इस बार हाफ है, कंप्लीट नहीं है, जी सर। और परपेंडिकुलर इक्वल होगा डेल्टा v/2 डेल्टा वी ओवर टू सही है डिवाइडेड बाय कंप्लीट v, ठीक है, यानी ये जो लास्ट फैक्टर बना है सर। ये v का है, सर ये वी का क्यों है? अच्छा ठीक है। अच्छा अच्छा, सही सही है हाँ सही है, वो कटा हुआ है ना, सही है, समझ आ गया। जी, ये कम, पीछे से काटना इसलिए वी है। ठीक है। तो अब यहाँ पर सिंपल बस इसको हमने सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के लिए अब सिंपल आपके पास ये होगा कि यहाँ पर डेल्टा v/2
जो है उसमें 2 डिनोमिनेटर में ऑलरेडी है, लेकिन उसके भी डिनोमिनेटर में एक क्वांटिटी और है, वेलोसिटी। ठीक है, जी सर। हम वेलोसिटी को लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देते हैं, इक्वेशन थोड़ी सी सिंपल हो जाएगी। तो ये हो जाएगा v मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा बाय 2 इज इक्वल्स टू डेल्टा v ओवर 2। ठीक है, ये हमारे पास अभी तक की फाइनल इक्वेशन बनेगी। और इसको भी हम फर्दर सॉल्व करके सिंपलीफाई करना चाहें तो हम सिंपलीफाई इस तरह से कर सकते हैं कि अब यहाँ पर अगर हम इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें बाय 2। ठीक जी है, सर, बढ़ और जाएंगे। सबसे पहले हमें ये भी पता है कि हमें टाइम की वैल्यू हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। ठीक है, जी और डेल्टा वी की वैल्यू यहाँ पर 2 जो यहाँ पर डिवाइड हो रहा है वो दूसरे एंड पर मल्टीप्लाई होगा। तो 2v साइन थीटा बाय 2 ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर हमारे पास एक्सेलरेशन में हमने इसको सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, क्योंकि ऊपर जो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला था वो डेल्टा वी ओवर टी था। जी ठीक है, ये हमारे पास बेसिक फॉर्मूला था एक्सेलरेशन का, जी जिसके लिए सर। हम टी पहले कैलकुलेट कर चुके हैं। और अब हम डेल्टा वी कैलकुलेट करना चाह रहे थे। तो अब जब वी भी कैलकुलेट हो गया तो हम इसको एक्सेलरेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। और एक्सेलरेशन में सब्स्टिट्यूट करने का मतलब ये है कि ये दोनों वैल्यूज आपके पास डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी इज इक्वल्स टू हो जाएगा। सर आपने किस वैल्यू को एक्सेलरेशन, अच्छा आपने एक मिनट एक्सेलरेशन सर, का बेसिक फॉर्मूला रेट नहीं ऑफ नहीं सर, वेलोसिटी। आपने किस वैल्यू को एक्सेलरेशन की जगह पुट करोगे? नहीं देखो, यहाँ तक ये हमारे पास ये वेलोसिटी की फाइनल वैल्यू आ गई। ठीक है, क्योंकि डेल्टा वी एक एंड पर है, अब ये फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते हम, क्योंकि हमने जो हमारी मेन रिक्वायरमेंट थी, जो सब्जेक्ट था वेलोसिटी, वो हम बना चुके हैं। ठीक है, जी सर। तो अब हम जो है वो एक्सेलरेशन, जो हमारा मेन फोकस था कि एक्सेलरेशन की वैल्यू कैलकुलेट करें, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या किया कि फॉर्मूला रखा v ओवर टी। अब इसमें वेलोसिटी जी की सर। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें जी सर। और वो आ जाएगी थीटा ओवर 2, और डिवाइडेड बाय जो टाइम की वैल्यू हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, वो टाइम की वैल्यू हमारे पास अगर आप एक बार और देख लो, ये था आर डेल्टा थीटा ओवर वी। ठीक है, जी सर। उसको हमने सब्स्टिट्यूट करना है। तो वो वैल्यू आपके पास होगी आर डेल्टा थीटा ओवर 2। अच्छा, थीटा ओवर 2, डेल्टा थीटा ओवर 2 सेम क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, क्योंकि सर वो चेंज, तो उधर टू था, इधर टी है, इधर टी था, इधर टू है। अच्छा ऊपर टी लिखा था तो हम इसको टी कर ले, अच्छा सॉरी वी है, तो आर डेल्टा थीटा ओवर वी हाँ वी है, सॉरी वी, टी नहीं वी। ये आ गया वी। और ये अब हमारे पास अब तक की फाइनल वैल्यू है। अच्छा अब इसमें सही सही। होता ये है कि यहाँ पर अगर जो साइन की वैल्यू ऊपर लिखी है, ठीक है, उस साइन की वैल्यू में आप देखो डेल्टा थीटा बाई 2 आ रहा है। जी सर। और हमारे पास जो एक्सेलरेशन का फाइनल फॉर्मूला था उसमें वी स्क्वायर ओवर आ रहा है, उसमें कोई एंगल की वैल्यू नहीं थी, क्योंकि एंगल से कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, क्योंकि एंगल जो है वो मैग्नीट्यूड के साथ लिंक है। हमने तो सिर्फ डायरेक्शन की चेंज की वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस किया है, तो हमें मैग्नीट्यूड से कोई लिंक नहीं है, हमारा डायरेक्शन के साथ लिंक है। तो हमें एंगल और इतना डिटेल्ड फॉर्मूला नहीं चाहिए। तो अगर एंगल को हमने यहाँ से स्किप करना हो, या एंगल को हम किसी तरह से सब्स्टिट्यूट करवा दें किसी वैल्यू से, तो उसका जी मेथड सर। ये होता है कि जो साइन का एंगल है ना वो थीटा बाई 2 लिखा हुआ है, डेल्टा थीटा बाई 2। अगर सर सेम, साइन का एंगल डेल्टा थीटा बाई टू। वैसे हम साइन थीटा लिखते हैं ना यहाँ जी पर। सर। जी ठीक है, तो ये इसका कोई ना कोई स्पेसिफिक एंगल होगा। जी सर। लेकिन क्योंकि अभी नंबर्स तो है नहीं हमारे पास, हम क्योंकि जी डेरिवेशन कर रहे हैं, तो डेल्टा जी। थीटा ओवर 2 इसका एंगल है अभी बेसिक। सही है सर, सही है। अगर एक मैथमेटिकल रूल ये होता है कि उसमें एक आइडेंटिटी हम यूज करते हैं कि डेल्टा थीटा ओवर 2 जो यहाँ लिखा है वो एंगल रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जी एंगल सर। की वैल्यू अगर डिनोमिनेटर में भी गिवन हो, ठीक है, जी। तो आप उसको 1 से सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। तो इससे ये होगा कि साइन थीटा बाई 2 जो है वो पूरा शिफ्ट हो जाएगा 1 के इक्वल। तो सर डिनोमिनेटर में तो लेकिन, मतलब इस तरह से आना चाहिए हमारे पास ये वैल्यू, अगर इस तरह से बन जाती है कि साइन डेल्टा थीटा बाई 2
और इसके डिनोमिनेटर में भी अगर इसके एंगल की क्वांटिटी आ जाए किसी तरह, ये वाली वैल्यू, जी तो ये सर। पूरा कंप्लीट इक्वल हो सकता है 1 के। ठीक है, मैथमेटिकल आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं हम यहाँ। सही है। तो जी जी इसमें सर, देखो, सही। अब हमारे पास डिनोमिनेटर में 2 नहीं है। जी वी सर। वी की जगह पर अगर 2 होता तो हम इसको सब्स्टिट्यूट करवा सकते थे। तो इस पर्पस के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पर 2 को मल्टीप्लाई और डिवाइड भी खुद से करवाते हैं। सही है सर। बात लिख देता हूँ मैं कि ये वाला स्टेप हमने एडिशनल किया है। क्योंकि मैथ्स में आपको पता है कि इक्वेशन पे चेंज कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए, तो अगर एक जी चीज मल्टीप्लाई हो रही है डिवाइड भी होती है। जी सर। तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड का कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई किया हमने। तो अब आप देखो कि हम v को हटाकर अगर 2 लिख दें, v को थोड़ा सा लेफ्ट पर लिखें, तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन का कुछ स्ट्रक्चर इस तरह से आएगा कि एक 2 तो कैंसिल हो जाएगा। सही है सर। ठीक है, अब एक 2 की वैल्यू ये कैंसिल आउट हो जाएगी, और जो डिनोमिनेटर वाला 2 है वो अपनी जगह जी पर एज इट इज रहेगा। तो वो इक्वल किस तरह से हो जाएगा, v साइन डेल्टा थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय r डेल्टा थीटा, और v को हम इसके साथ लिख लेते हैं। ठीक है, तो अब जो हमारी ये आइडेंटिटी हमने बनानी थी सेम, वो आइडेंटिटी हमारे पास बन गई। ठीक है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? सर। सर सही है, समझ आ गया मुझे। अब ये पूरा पार्ट हम 1 के इक्वल लिख सकते हैं, क्योंकि अगर थीटा बहुत जी स्मॉल सर, होता है सही है। तो ये कंडीशन अप्लाई होती है कि अगर जी आपके पास डेल्टा थीटा बहुत स्मॉल क्वांटिटी कंसिडर करें, तो हमारे पास जी ये सर। 1 के इक्वल होती है। तो जब ये कंप्लीट 1 के इक्वल हो जाएगा, तो हमारी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी कि एक्सेलरेशन इक्वल हो जाएगा v ओवर r ओवर v। ठीक है, और अब v को अगर r ओवर v को हम फ्लिप करेंगे तो v ओवर r में कन्वर्ट होगा सर इस तरह फ्लिप से। कर सकते हैं, सही। तो फाइनल इक्वेशन जो हमारे पास बनेगी वो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू v स्क्वायर अपॉन r हो जाएगा। ठीक है, सही है सर, समझ आ गया। तो ये हमारे पास जो है वो फाइनल वैल्यू होगी एक्सेलरेशन की। अच्छा, अब ये तो हमारे पास फाइनल फॉर्मूला आ गया, और जी इससे सर। पहले अगर हम, ये तो हमारे पास एक टर्म हो गई एक्सेलरेशन की, और जी अगर सर। हम इसमें v की जगह पर क्वांटिटीज डिफरेंट यूज करना चाहें, क्योंकि v टेंजेंशियल वेलोसिटी है, लीनियर वेलोसिटी, अगर हम इसको एंगुलर में कन्वर्ट करना चाहें, तो एंगुलर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये सर फॉर्मूला। एंगुलर इसमें करना चाहिए, एंगुलर एक्सेलरेशन में। नहीं नहीं, अगर हम एंगुलर वेलोसिटी के साथ इसे लिखना चाहें, ओमेगा के साथ अगर लिखना चाहें, तो आपको याद होगा अभी हमने एक कॉन्सेप्ट ड्राइव किया था, v इक्वल्स टू आर ओमेगा। ठीक है, v इक्वल्स टू आर सही। ओमेगा था, तो इसको हम यूज कर सकते हैं v की जगह पर। तो फॉर्मूला आपके पास क्या हो जाएगा यहाँ पर, आर ओमेगा होल स्क्वायर जी डिवाइडेड सर। बाय, और फाइनली एक आर की वैल्यू कैंसिल होगी नीचे, तो आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो ये हाँ आपके जी। पास एक फाइनल टर्म बन जाएगी एक्सेलरेशन की रिस्पेक्ट टू एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी, राइट। सही है सॉरी। सर। और इसके बाद एक फाइनल टर्म जो इसमें आती है, वो फाइनल टर्म ये है कि अब अगर हमने फोर्स को कैलकुलेट करना हो, ठीक है, सर किसको, फोर्स को? हम्म, ठीक है, कोई ना कोई फोर्स तो होगी ना जो उसे एक सर्कुलर जी पाथ सर। पर करवा रही है, वो जी force का सर। नाम क्या होता है, सेंट्रीपेटल फोर्स। सही है सर, सेंट्रीपिटल, जी। और सेंट्रीपिटल फोर्स का मतलब ये है कि अगर हम बेसिक फोर्स का फॉर्मूला लिखें, तो न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F इक्वल्स टू एम ए। जी सर। तो F इक्वल्स टू एम ए बेसिक फॉर्मूला होगा फोर्स का। और यहाँ पर हम अगर ए को रिप्लेस करते हैं इसके फॉर्मूला से, जो भी हमने यहाँ पर सॉल्व किया, v स्क्वायर अपॉन आर,
तो वी स्क्वायर ओवर आर को हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो एफ इज इक्वल टू, अच्छा सही। ठीक सर है, वैसे ये जो आर डब्ल्यू स्क्वायर है तो सी ओमेगा स्क्वायर है, खाली ओमेगा पे स्क्वायर आएगा ना, क्योंकि आर एक आर से कट गया। एक आर पे कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए मैंने ब्रैकेट हटा के सिर्फ जो है वो सही ओमेगा पे स्क्वायर लिखा, ठीक है। सही है। तो ये आपके पास हो गया। और दूसरा अगर हम देखें तो एफ इक्वल टू एम ए था, और ए को अगर हम रिप्लेस करते हैं वी स्क्वायर ओवर आर से, तो वी स्क्वायर ओवर आर से रिप्लेस करने के बाद जो क्वांटिटी होगी वो होगी एम वी स्क्वायर ओवर आर, ठीक है। तो एक फॉर्मूला हमने ड्राइव कर लिया, एफ इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर ओवर एम आर। वी स्क्वायर ओवर आर। और अगेन अगर आप चाहते हो कि इसको भी आप एंगुलर में कन्वर्ट करो, तो आप इसको भी एंगुलर में कन्वर्ट कर सकते हो। और एक फॉर्मूला हमने ये फाइनलाइज किया। सेकंड, अगर हम लिंक करना चाहते हैं आर ओमेगा स्क्वायर से, तो आर ओमेगा स्क्वायर वाला भी हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, और उस फॉर्मूला में ये वैल्यू एम, हमारी सर ये एम आर ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। एम आर ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो एक और फॉर्मूला आप इसका लिख सकते हो, एफ इज इक्वल्स टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। ये आपके पास टर्म हो जाएगी सही सेंटर फोर्स के लिए, ठीक है। है सर। तो यहाँ तक आपके पास ये सारी टर्म्स की जो बेसिक फिनोमिना, बेसिक लॉजिक्स थी, वो कंप्लीट हो गई।